So welcome again, my dear students. Very good morning to all of you in our new session of exercise 11.2. Again, my dear student, I am with new exercise here, and first of all, before starting the exercise, my task is to make you all aware about the formulae. So what are the formulae I am going to use here, my dear student? In this exercise, we will find the area of trapezium, area of rhombus, square, rectangle, and quadrilateral, parallelogram as well. So one by one, let me see. First one is area of trapezium. You all are knowing what is a trapezium. This is the shape of a trapezium. You can see ये इस फिगर को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेपेजियम। इसमें एक साइड ए होती है और एक साइड बी होती है, और इन दोनों साइड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोलता हूँ? एच। तो इसका एरिया का फार्मूला है 1/2 h इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी इज नथिंग बट सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। क्लियर एवरीबॉडी? सेकंड वन इज एरिया ऑफ rhombus when diagonals given। हमें जब एक रोम्बस दी है और उसके डायगोनल दिए होते हैं तो उसका एरिया कितना होता है बेटा? 1/2 इंटू d1 इंटू d2। दिस इज द सेकेंड फार्मूला। थर्ड वन, एरिया ऑफ रोम्बस when side and altitude given, that will be side into height, or simply you can say altitude. Both are same names. Fourth, area of parallelogram. I hope you all are knowing that is equal to side into height. This is our parallelogram. You can say parallelogram is sister of rectangle. ये होती है side और ये distance होता है height. Clear? So these are the formulae we have to make a proper use in our exercise number 11.2. and area of square, you people are knowing side into side. One new formula I am writing, area of right angled triangle, that is equal to 1/2 into base into height. So these are the formulae you have to comment to memory, comment to your memory. It should be understood. All the formulas are here, and I hope you will learn all these and make use in the exercise 11.2. Now let me move to the exercise here. यस बेटा, अब 11.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? एक टेबल है मेरे पास, इट इज द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम दिस वे, यू कैन सी as the figure shown to you on the textbook. Its one parallel side A equal to 1.2 meter and second side B equal to 1 meter, and the distance between parallel side is 0.8 meter. Now what to do, my dear student? I have to find its area. So given, what given, my dear student? Given A side is equal to 1.2 meter and B side is equal to, this is 1 meter, and height is equal to 0.8 meter. Now you are knowing area of trapezium. Area of trapezium is equal to 1/2 h into sum of parallel sides. I have written, you can
write all these value A, B and H. Then after it comes 0.8 can be written as 8/10 into A plus V. ये बनेगा 2 4 जा 2 5 जा 2/5 bracket 2.2. This can be further solved as 2/5 into 22/10. So 2 5s are, so it's coming 22/25 meter square. So after cancelling this one, after making the division of this one 22 divided by 25, I will get the answer as 0.88 m square meter square. So this was about question number first of our 11.2 exercise. Without any error you can see, and you have to be very conscious to know about the cancellation, multiplication. All the things should be clear from your side also. इन द क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 भी हम यहाँ पे ही देख लेते हैं बच्चों. देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे हम इन्वॉल्व कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में एरिया दिया है. क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज गिवन 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड वन पैरेलल साइड ए कितना दिया है 10 सेंटीमीटर. एंड हाइट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है. और मुझे सेकंड पैरेलल साइड बी फाइंड करनी है. सो माय डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू एच की वैल्यू 4 इंटू ए प्लस बी 10 प्लस बी कर दूंगा. तो ये बनेगा 34 इज इक्वल टू, ये और ये कट जाएगा तो ये बनेगा 10 प्लस 1/2 एच ब्रैकेट ए प्लस बी. तो 34 माइनस 10 इज इक्वल टू बी. सो विच इम्प्लाइज बी विल बी इक्वल टू बी 24 सेंटीमीटर्स में. तो ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन भी इसका सॉल्व हो गया है. अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है. क्वेश्चन नंबर 4 आई विल डू. क्वेश्चन नंबर 4 आई एम गोइंग टू डू. हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे क्या दे रखा है कि क्वाड्रिलेटर दे रखी इस शेप में. एवरीबॉडी सी केयरफुली. ये और इसके एल्टीट्यूड भी दे रखे हैं. फार्मूला आता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 1/2 इंटू डी इंटू सम ऑफ द एल्टीट्यूड. तो इसमें गिवन क्या है बेटा, बुक के अंदर क्वेश्चन देखो, डी का वैल्यू है, डी इज गिवन इन द क्वेश्चन 24 मीटर. H1 भी दिया है बुक में 13 मीटर और H2 भी दिया है 8 मीटर. तो फार्मूला लगाओ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी 24 है ब्रैकेट H1 प्लस H2 13 प्लस 8. सो दिस इज कमिंग 12 इंटू 21. सो विच इम्प्लाइज 252 meter square. So this will be the area of this one. So the dimensions here were given 13, 8 और ये D दिया था 24. This way the question was given to you. अब हमारे पास इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगर मैं देखना चाहूँ 5, बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 7.5. इसका मतलब D1 दिया है 7.5 सेंटीमीटर और D2 कितना दिया है 12 सेंटीमीटर. डायगोनल गिवन है, मतलब डायगोनल गिवन. तो इसका एरिया कितना होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2. एरिया किसका, रोम्बस. रोम्बस एरिया इक्वल टू
which implies 1/2 into d1 75/10 into d2 12. So 2 5s are 15. So 2 6s are 2 3s are. So it is coming 45 centimeter square is the area of this question number 5. 6 again I will do. Question number 6 I will do beta, don't worry. In the question number 6, what is given in the question, that is important to know. क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है हमें। रोम्बस का साइड दे रखा है, रोम्बस का साइड है इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये दिया है रोम्बस का साइड, और उसका हाइट भी दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर। अगेन इफ one diagonal equal to one of the diagonal equal to 8 centimeter long, find d2. This is the question. So according to the first condition, अगर मैं देखता हूँ when side and height given in rhombus, इसको स्टार बनाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो आपको आ जाना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे जब साइड और एल्टीट्यूड दिया है रोम्बस का, तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होगा, एस साइड इंटू एच, मतलब 5 इंटू 4.8. सो दिस विल कम 0, 4 विल बी कैरी हियर, this much centimeter square. Area of rhombus is coming this one. Second condition, when d1 given and area given, then d2 will be this much, मतलब area of rhombus will be 1/2 into d1 into d2. This is the concept we have to make here. So area हमारे पास इक्वेशन 1 से आ रहा है, मैं लिख दूंगा फ्रॉम 1 24 इक्वल टू 1/2 इंटू 8 इंटू d2, तो 2 4 ज़ा और 4 6 ज़ा, सो विच इम्प्लाइज d2 फॉर द रोम्बस इज कमिंग 6 सेंटीमीटर। एम राइट? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके हिस्से में जाता है, बहुत ही शॉर्ट और इजी क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 कर देता हूँ, दैट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन द इनिंग। सो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है बेटा, पहले डायग्राम को समझो। बोलता है मोहन के पास एक फील्ड है और उस फील्ड का एक कॉर्नर जो है वो रिवर साइड में लगता है और एक जो है वो रोड साइड में लगता है। ये फील्ड है, फील्ड का एक साइड रिवर के साथ और दूसरा रोड के साथ लगता है। अब कंडीशन दी है कि द साइड ऑन द साइड ऑफ रिवर इज ट्वाइस एज द साइड ऑन द रोड। तो रोड साइड वाली x होगी और रिवर साइड की हो जाएगी 2 टाइम्स। तो मैं लिख दूंगा a का वैल्यू 2x और b का वैल्यू बेटा x, और इसकी हाइट भी दे रखी है बुक के अंदर। हाइट इज गिवन एज 100 मीटर एंड इट्स एरिया इज आल्सो गिवन, एरिया ऑफ फील्ड, वो कैसा है फील्ड, ट्रेपेजियम का, उसका एरिया है 10,500 मीटर स्क्वायर। So my dear student, we are knowing area of trapezium is equal to 1/2 h into sum of parallel sides. So area मेरे पास था 10,500 equal to 1/2 into h,
100 इंटू 2x प्लस x। तो 2 से 100 कट हो गया, आया 50 की 1 0 के साथ ये भी कट, और 5 के साथ 5 2 ज़ा 10, ठीक है। फिर ये बनेगा मेरे पास 1 0। सो विच इम्प्लाइज 210 इज इक्वल टू 3x। अब 3 से ये भी कट होगा, 7 0 ज़ा। सो विच इम्प्लाइज x इज कमिंग 70 मीटर। x क्या है, रोड साइड में है ना। अब अदर साइड उसका नाम क्या दिया था मैंने, a इक्वल टू 2x, मतलब 2 इंटू 70 कितना बना, 140 मीटर। तो मेरे पास दोनों की दोनों साइड जो है वो कैलकुलेट हो गई फील्ड की, यही हमसे पूछा गया था। क्लियर बेटा। अब आगे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। फिगर को एनालाइज करना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक रेगुलर ऑक्टागोन दिया इस तरह से, देखो ये 5 5 5 5 5 5 5। अगर मैं इन दो साइड को मिला देता हूँ ऐसे, ये अब मेरे पास जो दूसरी चीज़ है, ये साइड दी है 11, ये भी कितना होगा 11। अब मैं बोलूँगा ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3। तो ये मेरे पास एक फिगर बनी जिसमें ये एक ट्रेपेजियम और ये दूसरी ट्रेपेजियम और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रही है। मैं इन तीनों के एरिया को प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा बच्चों, इस फील्ड का एरिया। इन फिगर वन में क्या दिया है, ए की वैल्यू 11 दी है, बी की वैल्यू 5 दे रखी है और एच की वैल्यू दे रखी है बच्चों 4 मीटर। एम लगाना, मीटर जो भी यूनिट है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 ब्रैकेट ए प्लस बी, मतलब 11 प्लस 5 16 बनेंगे 2। तो ये बनेगा 32 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम कितना बनेगा, एक का इतना होगा, दूसरी का भी इतना ही होगा। ट्रेपेजियम इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर। ये पहला पार्ट हो गया मान लो। नाउ फॉर फिगर नंबर 2, क्या है वो, रेक्टेंगल है बेटा, ये रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है 11 और ब्रेड्थ है 5। तो इसका एरिया कितना होगा, L इंटू बी, मतलब 11 इंटू 5 दैट इज 55 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया क्या बनेगा, एरिया विल बी ट्रेपेजियम एरिया प्लस रेक्टेंगल एरिया, मतलब 64 प्लस 55 119 मीटर स्क्वायर। इसमें कुछ करना नहीं था, आपके लिए ही ये क्वेश्चन था, बट मैंने फिर भी किया आप लोगों के चलते हुए, ये मैंने आपको करके दिया है। 9 10 आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। दो फिगर हैं स्प्लिट की हुई हैं, दोनों के एरिया को आप अलग अलग तरीके से फाइंड करो, हो जाएगा। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर कर देता हूँ 11 नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेंटल एक्सरसाइज के लिए, तो आप इसको समझ सकते हैं बच्चा लोग और कर सकते हैं। देखो इस फिगर के बीच में पहले क्या दिया हुआ है, एक ऐसे दिया है, रेक्टेंगुलर शेप दिया है इस तरह से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से ये पार्ट दिए हुए हैं, ये पार्ट दिया है, ये पार्ट दिया है और ये पार्ट भी दिया है। अब ये टोटल हाइट है 28, ये है 20, ये है 16, तो ये भी 28 होगी। इसको 1 मानूंगा, ये भी इसका 1 ही रहेगा, ये वाला पार्ट 2 रहेगा और ये वाला पार्ट 2 रहेगा। 1 1 आर कन्ग्रुएंट, 2 2 पार्ट आर अगेन कन्ग्रुएंट। सो फॉर पार्ट 1, 2 दोनों क्या है बेटा, ये ट्रेपेजियम है। क्या है ये, ट्रेपेजियम है। तो इसका एरिया कितना आता है 1/2 इंटू एच ब्रैकेट ए प्लस बी, इसका एरिया जो है। अच्छा
अब दूसरी बात, ये जो ट्रेपेजियम है उसमें ए कितना मिला मुझे, ए की वैल्यू मिली 28, बी की वैल्यू कितनी मिली मुझे 20 मिली। अब इसकी हाइट कितनी होगी, देखो इस फिगर की ये हाइट कितनी होगी, देखो ये टोटल लेंथ जो है मेरे पास बुक के अंदर दी है 24, देखो ये लेंथ मुझे 24 दी है और ये डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे 16 बच रहा है 16, तो यहाँ पे कितना डालूँ और यहाँ पे कितना डालूँ, 4 यहाँ पे डालना पड़ेगा और 4 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो ये हाइट बन गई 4, तो हाइट की वैल्यू कितनी आएगी 4 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर इट इज। अब इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1, 2 will be equal to 1/2 4 into 28 plus 20 2 into 48 equal to 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रेपेजियम 1 इक्वल टू ट्रेपेजियम 2, ऐसे लिख देते एरिया ट्रेपेजियम 1 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2 इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच, राइट। अब मेरे पास फॉर पार्ट नंबर 2 उसका ए साइड कितना है, ये देखो ए है इसका 24, बी है 16 और इसका हाइट देखो आप 28 है, ये वाला कितना है, ये 28 है और ये 20 है, तो यहाँ कितना बढ़ाए 4 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा और 4 यहाँ पे, तो टोटल हो जाएगा 28। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू h इंटू 24 प्लस 16, ये कितना बन जाएगा मेरे पास 40, आई थिंक सो, दैट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2, ये 1 और ये 1 लिया था मैंने, है ना, 1 और ये 1 इज इक्वल टू, और ट्रेपेजियम 2 लेफ्ट वाली इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2, ये कितना हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच। So student, this completes our exercise 11.2. So goodbye everybody, enjoy the exercise, try to make the proper use of the formula. Till then, goodbye, have a nice day.